Hello everyone. We are doing chapter number 8, Cell, the unit of life. This is the third video of the chapter, class 11th, Biology. In this video, we are going to cover the topic eukaryotes. In the eukaryotes, we are already doing the different cell organelles. In this video, we will cover the following organelles: plastids, ribosomes, cytoskeleton, cilia and flagella, centrosome and centrioles, nucleus and microbodies. Let us start with the plastids. Where are they present? The plastids are present in plants as well as in euglenoids. और इनका जो साइज है वो इतना बड़ा होता है कि we can see under the microscope very easily. They contain pigments, and on the basis of pigments they are classified into three categories: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Diagram is in front of you. Chloroplast is in the center, chromoplast first diagram है and leucoplast is the third diagram. Chloroplast, see the diagram number 1. It contains chlorophyll and carotenoids. So, two pigments are there, chlorophyll and carotenoids are present in the chloroplast. और इनका रोल क्या है? They help in trapping the light energy for photosynthesis. When the leaf does the photosynthesis for making the food, they trap the light with the help of chloroplast. Second is chromoplast. कौन से इसमें pigments होते हैं? Carotenoid pigments हैं, carotene and xanthophyll. और ये कलर देते हैं, like yellow color, orange color, red color to the flower, to the fruits. So, the color is due to the presence of chromoplast. Third, leucoplast. ये colorless होते हैं, but they vary in the shape and size. And role क्या है इनका? They store the nutrients. Three types के हैं leucoplast. Amyloplast, diagram A. It stores starch, as in case of potato. Elaioplast, they store oils and fats, diagram B. And aleuroplast, they store proteins, diagram C. Come to the chloroplast. कहाँ होते हैं ये chloroplast? ये double membrane structure है and they are found in the mesophyll cells of the leaves. See the diagram. लीफ का सेक्शन दिखाया गया है जिसमें पूरा लेयर है mesophyll लेयर, और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. इनका शेप कैसा हो सकता है? दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, डिस्कोइडल और रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स. लेंथ कितना वेरी करता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर. विड्थ कितना वेरी करता है? 2.2 to 4 माइक्रोमीटर. ओके. एंड इनका नंबर, सी द नंबर. क्लैमिडोमोनास में देयर इज ओनली वन क्लोरोप्लास्ट, while in the one cell of mesophyll there may be 20 to 40 chloroplast. Okay, so एक सेल में ही 20 to 40 chloroplast हो सकते हैं which are present in the mesophyll layer of leaf. See the structure in detail now. They have got two membranes, the outer membrane and the inner membrane. नंबर 1 पर outer membrane लिखा हुआ है, डायग्राम को देखिए, and नंबर 2 पर inner membrane लिखा हुआ है. Inner membrane is less permeable. बहुत कम चीज़ों को एंट्री और एग्जिट देती है ये. And the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called as stroma. See the point number 3. Stroma है अंदर, inner membrane के अंदर stroma है, और stroma में what are present? Flattened membranous sac-like structure called thylakoids. See the point number 4. These are the thylakoids which are stacked together one above the other. एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं ये thylakoid. And inside the thylakoid अगर हम इसका section काट के देखें तो you will find the lumen. And in this lumen the chlorophyll is present. Come to the next point. These thylakoids are stacked together, एक दूसरे के ऊपर arranged हैं, and when they are arranged one above the other they form grana. So there are granas are there in front of you in the diagram, and one grana is attached to the another by means of lamella called stroma lamella. See green color का, dark green color का स्ट्रोमा लेमिला बनाया गया है जो कि वन ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से ज्वाइन कर रहा है.
Okay, what else are present in the stroma? Stroma also contain double stranded circular DNA, राइबोसोम होते हैं, एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो इसमें राइबोसोम है उनका साइज क्या है? 70s, जबकि जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है यूकैरियोट्स के अंदर वो 80s का है। ओके, सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। स्टार्ट फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन, डार्क ग्रीन कलर की है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन अगेन डार्क ग्रीन कलर, एंड बिटवीन द टू मेम्ब्रेन देयर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और अंदर आइए, यू विल फाइंड अ येलो कलर फ्लूइड, aqueous fluid which is called stroma, and inside the stroma there are thylakoids, oval shape, green shade के oval shape बने हुए हैं, they are thylakoid, and when the thylakoid are arranged one above the other, एक दूसरे के ऊपर attached हैं, they form the granum। ओके, जैसे तीन thylakoid इकट्ठे हैं और वो एक ग्रैनम बना रहे हैं। One granum is attached to the another granum by lamella। ओके, एंड इनसाइड द ग्रैनम अगर आप देखें क्या है, देयर इज अ ल्यूमन, एंड इन दिस ल्यूमन व्हाट इज प्रेजेंट? द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। सो दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ वन क्लोरोप्लास्ट। कम टू राइबोसोम्स, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं है इसके अंदर, और क्या चीज प्रेजेंट होती है इसमें? दे हैव गॉट राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, टू थिंग्स हैं इसके अंदर। और इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? जॉर्ज पैलेडी ने इन 1953 में। You have to remember the name। स्ट्रक्चर देखिए राइबोसोम्स का, ये दो सब यूनिट से बना होता है। एक स्मॉल सब यूनिट है 40s, एक बिगर सब यूनिट है 60s, एंड व्हेन दीज टू यूनिट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म 80s, नॉट 100। रिमेंबर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर नीट एग्जाम। ओके, सो 80s का होता है ये जो जब when the 40s combine with the 60s। साइटोस्केलेटन, कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का बना होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। मेन रोल इनका मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल है और मैकेनिकल सपोर्ट है। कम टू सिलिया एंड फ्लैगेला, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ। डायग्राम देखिए, सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटग्रोथ निकल रही है। दिस आउटग्रोथ इज मे बी सीलिया और फ्लैगेला। सीलिया, दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर एंड वर्क लाइक ओर्स। जैसे बोट चलाने के लिए ओर चाहिए, ऐसे ही सीलिया का रोल है। दे वर्क लाइक एन ओर एंड हेल्प क्या करते हैं? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेल और द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। जो उनके आसपास फ्लूइड है या तो वो मूव करता है या तो सेल मूव करता है। फ्लैगेला, ये थोड़े से लॉन्गर होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। ओके, एंड फ्लैगेला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। स्ट्रक्चर देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है सीलियम और फ्लैगेलम का? ये दे आर कवर्ड बाय द आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, डायग्राम में देखिए। ओके, मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी पार्ट है दैट इज कॉल्ड द कोर और द एक्सोनीम। और इस एक्सोनीम में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं विच रन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। अब एक्सोनीम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं कितने? एक्सोनीम हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स, दो के ग्रुप में बने हुए हैं और 9 ग्रुप हैं ऐसे। पेरिफेरी में देखिए, पॉइंट नंबर 2, पेरिफेरी में देखिए दो के ग्रुप में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हैं। ओके, सो 9 एंड सेंटर में देयर इज अ पेयर, मीन्स ओनली 2 ट्यूब्यूल्स आर देयर, सेंट्रल ट्यूब्यूल। तो इसका अरेंजमेंट होता है 9 + 2, 9 पेरिफेरी में और 2 सेंटर में। रेस्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड। दोनों सेंट्रल ट्यूब्यूल हैं, 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। देखिए ग्रीन स्ट्रक्चर से कनेक्टेड दिखाया गया है इसके अंदर। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, एक शेथ है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल शेथ। पॉइंट नंबर 2 पर देखिए, रेड कलर का शेथ बना हुआ है जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कवर कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है। क्लियर? ऑल्सो
It is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke. Very important. Radial spoke देखिए पॉइंट नंबर 1 पर रेडियल स्पोक है, डबलेट्स हैं बाहर, डबलेट में से एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसमें से दो में से एक वो सेंट्रल शेथ से फिक्स है, जॉइंड है बाय द रेडियल स्पोक. एंड मोर ओवर जो डबलेट्स हैं दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, आपस में भी ये इंटरकनेक्टेड हैं. इंटर डबलेट ब्रिज देखिए पॉइंट नंबर 3 पर दिखाया गया है, यहाँ पर दो का जो ग्रुप है वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड है. तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सीलियम एंड फ्लैगेलम एमर्ज आउट फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसल बॉडी. ये कहाँ से निकलते हैं? बेसल बॉडी से निकलते हैं. विल सी इट लेटर ऑन. So this is the detailed structure of the cilia and flagella. आउटर मेम्ब्रेन 1 से स्टार्ट करिए. पेरिफेरल मेम्ब्रेन है आउटर, और पेरिफेरल मेम्ब्रेन के बाहर अंदर जो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. पॉइंट नंबर 1, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दीज आर इन डबलेट्स, दो के ग्रुप में बने हुए हैं और ऐसे 9 ग्रुप बने हुए हैं. सेंटर में आ जाइए, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सेंटर में और दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और दे आर कवर्ड बाय द शेथ कॉल्ड एज सेंट्रल शेथ. पॉइंट नंबर 3 पर सेंट्रल शेथ लिखा हुआ है. एंड जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाय इंटर डबलेट ब्रिज. पॉइंट नंबर 4 पर लिखा हुआ है. मोरओवर जो बाहर के जो डबलेट्स हैं, आउट ऑफ द 2 माइक्रोट्यूब्यूल 1 इज अटैच विद द सेंट्रल शेथ बाय रेडियल स्पोक. 2 में से एक रेडियल स्पोक से भी अटैच है. तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन द cilia and flagella. Come to centrosome and centrioles. Centrosomes is an organelle containing 2 non-membrane bound cylindrical structure called centrioles. एक centrosome में 2 centrioles होते हैं. डायग्राम में देखिए 1 and 2 and they lie perpendicular to each other. Okay, the centrioles lie perpendicular to each other and they are surrounded by pericentriolar membrane material. Okay, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin. Okay, और each जो फाइबर है वो उसमें क्या है, पेरिफेरल फाइबर में वो ट्रिपलेट की बनी हुई है. सीलिया फ्लैगेला में डबलेट थे, यहाँ पर ट्रिपलेट हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं. डायग्राम देखिए यहाँ पर आपके सामने है. सेंट्रल पार्ट को कह रहे हैं हब. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. सेंट्रल पार्ट को देखिए डायग्राम में देखिए पॉइंट नंबर 1 सेंट्रल हब है विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स. जो बाहर ट्यूब्यूल्स हैं 3 के ग्रुप में उनसे कनेक्टेड है बाय द रेडियल स्पोक्स. पॉइंट नंबर 2 पर लिखा हुआ है मेड अप ऑफ प्रोटीन. ओके, एंड ऑल्सो सी एसी लिंकर. जो 3 के ग्रुप्स हैं वो भी आपस में कनेक्टेड हैं बाय द एसी लिंकर. सो 1 इज सेंट्रल हब, 2 इज अ स्पोक थ्रू विच द ट्रिपलेट्स आर अटैच विद द हब. 3 नंबर पर ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूब्यूल्स के एंड 4th नंबर पर एसी लिंकर है. सो द सेंट्रियोल फॉर्म, ये बना, इसका यूज क्या है सेंट्रियोल का? दे फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैगेला. बेसल बॉडी से जहाँ से सीलिया और फ्लैगेला निकलते हैं वो बनाने में हेल्प करते हैं ये सेंट्रियोल. एंड ऑल्सो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द डिविजन ऑफ सेल इन एनिमल सेल्स. कम टू द न्यूक्लियस. Nucleus was first described by Robert Brown in 1831 and the material of the nucleus stained by the basic dye was given the name chromatin by Fleming. तो क्रोमेटिन का जो नाम था वो फ्लेमिंग ने दिया. नॉर्मली हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. कुछ सेल होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है और कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो मैच्योर होने के बाद उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे मेमिलियन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स एंड ऑल्सो सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन 4 थिंग्स. न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म,
it contain chromatin, it contain nucleolus. Nuclear membrane, nuclear envelope, बाहर देखिए, it is a double layer structure again. न्यूक्लियस के बाहर डबल लेयर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, डबल लेयर मेम्ब्रेन बना हुआ है, एंड द स्पेस बिटवीन द टू इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और वो कितना साइज है उसका 10 to 50 नैनोमीटर, और ये बैरियर है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ये बैरियर का काम करती है. इट इज अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. पॉइंट नंबर 1 पर देखिए, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जॉइंड है, वो कनेक्टेड है वो. क्लियर. पॉइंट नंबर 2 पर देखिए, न्यूक्लियर एनवेलप हैज माइन्यूट पोर्स. ये जो वॉल है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बल्कि कहीं कहीं पॉइंट पर वो छुटी हुई होती है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पोर, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर. एंड फ्रॉम दिस पोर the exchange of RNA and protein takes place between the nucleus and the cytoplasm. क्रोमेटिन पर आइए. अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, डायग्राम देखिए, क्रोमेटिन बना हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन कलर से शो किया गया है. इसमें होता क्या है, इट कंटेन्स DNA, इट कंटेन बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड RNA ऑल्सो. और जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, छोटा हो जाता है और क्रोमोसोम बनाता है. कम टू न्यूक्लियोलस, वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडी विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. इट इज कॉन्टिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, बिल्कुल कॉन्टिन्यूएशन में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के, एंड इट इज द साइट वेयर द राइबोसोमल RNA synthesis takes place. See the structure of nucleus. I am starting with the point number 1, outer membrane. Point number 2, inner membrane. Point number 3, perinuclear space, the space between the two membrane. Pore, nuclear pore is the point number 4, which is the gap between the membrane. Continuation में नहीं है, gap है, pores हैं, जहाँ से exchange होता है between the cell and between the cytoplasm and the nucleus. 5 नंबर पे देखिए, outer membrane is connected with the endoplasmic reticulum. 6 नंबर पर देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन, एंड 7th नंबर पर देखिए, इट इज अ न्यूक्लियोलस विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. कम टू क्रोमोसोम्स. अ ह्यूमन सेल हैज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग DNA, 2 मीटर लंबा DNA 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, एक कंस्ट्रिक्शन होती है एक पॉइंट पर, हर क्रोमोसोम में होती है, एंड दिस कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. एंड ऑन द साइड ऑफ दिस सेंट्रोमियर अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट. डायग्राम देखिए, काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट वेयर द सेंट्रोमियर इज देयर. ओके, एंड लोकेशन क्या है सेंट्रोमियर की, इसके बेसिस के ऊपर क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. डायग्राम नंबर 1, मेटासेंट्रिक, जहां पर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होता है, और जो क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स हैं, अपर आर्म एंड लोअर आर्म, दोनों इक्वल होती हैं. दिस इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज नियरर टू वन एंड, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया है, मेकिंग द वन आर्म स्लाइटली शॉर्टर देन द अदर आर्म. One arm is shorter arm and other arm is slightly longer. This is called submetacentric. Acrocentric, centromere is close to one end, बिल्कुल near to one end चला गया है. इसके कारण जो one arm है वो बहुत छोटी हो गई है, very short one arm and very long second arm. And the last is stereocentric, in which the centromere is terminal, बिल्कुल end पर है. आफ्टर दिस सी द सैटेलाइट. डायग्राम देखिए, सैटेलाइट बना हुआ है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो सेंट्रोमियर है, बट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलती है. सम क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन एंड इट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट्स. माइक्रोबॉडीज, these are membrane bound minute vesicles that contain various enzymes and present both in plant and animal cell. Now let us see the difference between the plant and animal cell. Plant cell has got cell wall. Cell wall is absent in animal cell. Plant cell has plastids
Animal cell doesn't have the plastids. Plant cell has a large central vacuole, but animal cell has many small vacuoles. Plant cell has no centriole. Centriole is absent in plant cell, while the animal cell has the centrioles in it. Okay. Next come to difference between the prokaryotes and the eukaryotes. Prokaryotes, they are generally smaller, eukaryotes are larger. Prokaryotes में genetic material को nucleoid बोलते हैं और eukaryotes में genetic material is present in the nucleus. Prokaryotes, nuclear membrane is absent. In eukaryotes, nuclear membrane is present. Next, membrane bound organelles are absent in prokaryotes and membrane bound organelles are present in eukaryotes. There is a circular DNA in prokaryotes and there is a linear DNA in eukaryotes. Ribosome का size देखिए, prokaryote में 70s है and eukaryotes में 80s है, except in plastids and mitochondria where the size is 70s. Okay. So, that is all about the cell, the unit of life. Do the test which is given in the description box in the form of MCQ for you. Thank you for staying with me. Subscribe the